آسمانوں سے رحمتوں کی بارش برسنے لگتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور روح تازگی محسوس کرتی ہے۔ یہ محفل بھی اسی نورانی آغاز کی طلبگار ہے۔ آئیے ہم سب خاموشی، یکسوئی اور ادب کے ساتھ اپنے دلوں کو اللہ کے کلام کے لیے کھول دیں۔ اس سعادت کے لیے ہم مدعو کرتے ہیں حافظ محمد ابراہیم بن وسیع الزماں ترکیال حفظ اللہ کو کہ وہ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرما کر اس محفل کے دامن کو رحمت سے بھر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں کو قرار اور مجلس کو وقار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب نیت خالص ہو، چہرے پر تبسم اور الفاظ میں سچائی ہو۔ آج کی یہ مقدس نشست علم و ادب، خیر و برکت اور محبت و اخلاص کا سنگم ہے۔ ہم اس محفل میں آنے والے تمام معزز مہمان، علماء اکرام، ذمہ داران اور ہر وہ فرد جو طالب علم اور اصلاح نفس کی نیت سے حاضر ہوا ہے، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ آپ کی آمد نے اس بزم کو رونق دی۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ مجلس ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہو۔ کبھی کچھ شخصیات تعارف کے محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا علم، ان کی دعوت، ان کی فکر اور ان کا اسلوب ہی ان کا تعارف ہوتا ہے۔ آج کی محفل میں ہمیں ایک ایسی ہی باوقار، با کمال اور با اثر شخصیت کی صحبت میسر ہے جن کا نام آتے ہی خالص توحید، عام فہم بیان، فکری اصلاح اور علمی وقار ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فضیلت الشیخ دکتور فاروق عبداللہ مدنی حفظہ اللہ صاحب کی۔ آپ علم و تحقیق کی دنیا میں ایک شناسہ نام ہیں، نوجوانوں کی فکر، تربیت اور سوشل میڈیا کے میدان میں رہنمائی کے لیے متحرک ہیں۔ آپ کی گفتگو سادہ، مدلل اور دلوں پر اثر انداز ہونے والی ہوتی ہے۔ آپ کی دعوت میں وہ درد، وہ اخلاص، وہ حکمت موجود ہے جو سونے والوں کو جگا دیتی ہے اور جاگنے والوں کو منزل کی طرف رواں کر دیتی ہے۔ تو آئیے اب ہم ادب، توجہ، خاموشی کے ساتھ خوش برآواز ہوں اور استفادہ کریں ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ دکتور فاروق عبداللہ مدنی حفظ اللہ کے بصیرت افروز اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے کلمات سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، معزز مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس پروگرام کے لیے منتظمین کی طرف سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ، نوجوانوں کی گمراہی میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جس طرح ہمیں رخصت ہونا ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں عمل کیا ہے، اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کرامن کاتبین ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی، جب ہمیں اپنے ہاتھوں میں نامہ اعمال ملے گا، تو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہوگا جو درج نہ ہو، اور ذرہ برابر شر کا، برائی کا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو درج نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے کے برابر بھی اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس نیکی کو بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، اگر ذرے کے برابر اس نے کوئی برائی کی ہوگی اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے مثال بھی دی تو ذرے سے دی، جسے انسان محسوس بھی کر سکتا ہے اور اس کی حقیقت کو بھی جان سکتا ہے۔ ذرہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ننگی آنکھوں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کب دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دیوار کے اندر کوئی سوراخ ہو اور سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں روم کے اندر اس سوراخ سے آ رہی ہو تو وہاں پر یہ باریک ذرے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذرے پورے روم کے اندر موجود ہیں، لیکن جہاں پر یہ روشنی سورج کی نہیں آ رہی وہاں پر ان ذروں کو ننگی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ اتنے باریک ہیں کہ ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین نے اس ذرے کی مثال دے کر کہا کہ اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کا کام کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر اگر گناہ کا کام کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے لفظ ذرہ کا استعمال کیا کہ ذرے کے برابر بھی اللہ رب العالمین سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہے روم بند کر لے، لائٹ آف کر دے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائے،
لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہو تو روم کا بند کر لینا، لائٹ کا آف کر دینا اللہ رب العالمین سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو عقیدے کا ہمارے عمل پر اثر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہے بطور نعمت۔ ابھی خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ خصوصاً جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور ترقی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کے زمانے میں ایک عام انسان بھی ایسی نعمتیں حاصل کر رہا ہے، پرانے زمانے میں بادشاہ بھی ایسی نعمتوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ آج ایک عام انسان ایسی نعمتیں حاصل کرتا ہے، بجلی چلی جائے انورٹر کا انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہے، کولر کا انتظام ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ بھی ہوتے تھے وہ بھی گرمی لگتے وقت کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ خادموں کی بڑی بڑی جماعت ہوتی، وہ ان کو پنکھے جھیلتی رہتی تھی، یہ زیادہ سے زیادہ وہ خدمات حاصل کر سکتے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی جیسی بھی کوئی نعمت آنے والی ہے مستقبل میں جو عام لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو جو نعمتیں حاصل نہیں تھی، آج کے زمانے میں ایک عام انسان کو نعمتیں حاصل ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انٹرنیٹ کی نعمت ہے، موبائل کی نعمت ہے۔ یہ ڈبہ ہمارے لیے حجت بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھی حجت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہمیشہ اس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے خلاف حجت نہ بنے، ہمارے لیے حجت بنے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے استعمال پر اس کے فوائد اور نقصانات کا پورا معاملہ دار و مدار رکھتا ہے۔ آگ ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی آگ سے روزانہ ہم کھانا پکاتے ہیں۔ اگر آگ نہ رہے تو ہماری زندگی نہیں کٹ سکتی، لیکن یہی آگ ہمیں تہس نہس بھی کر سکتی ہے۔ گزشتہ کل جو پلین کریش ہو گیا، سب کے سب جھلس کے مر گئے، تو یہی آگ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرے تو پھر یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ چاقو ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی۔ اس کا ہم مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، منفی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا ہم مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کا غلط استعمال کر کے اپنی دنیا و آخرت کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک انٹرنیٹ اور موبائل بھی ہے۔ یہ ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے، ہم بے شمار روزمرہ کی زندگی کے کام اس سے لیتے ہیں، وہیں یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ فتنے کا لفظ اکثر و بیشتر انٹرنیٹ کے لیے، موبائل کے لیے اور سوشل میڈیا وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، موبائل کا فتنہ۔ فتنہ آخر کہتے کس کو ہیں؟ آپ محدثین کی کتابیں دیکھیں، جیسے صحیح بخاری اٹھائیں، آپ پائیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، ایک کتاب قائم کی ہے کتاب الفتن کے نام سے۔ جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج ہے، اسی طریقے سے ایک کتاب امام بخاری نے کس عنوان سے قائم کی ہے؟ کتاب الفتن کے عنوان سے، فتنوں کی کتاب۔ بہت سارے محدثین نے اس طریقے سے فتنے کے متعلق احادیث ذکر کی ہیں، خاص عنوان قائم کیا ہے۔ کس طرح کی حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں؟ فتنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی لفظ فتنے کا استعمال کیا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً،
अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि उस फितने से बचो जो फितना सिर्फ जालिमों को नहीं पकड़ सकती, सिर्फ जालिमों के लिए नहीं आता, बल्कि वो तमाम लोगों को अपने चपेट में ले लेता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आदाब आता है तो सिर्फ उनके घरों में आदाब नहीं आता जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, बल्कि अगर कहत साली आए, जलजला आए, सैलाब आ जाए, तो इस तरह के आदाबों में, इस तरह की मुसीबतों में तमाम लोग पिसते हैं। इसे आम फितना कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह के फितनों से बचने का हमें हुक्म दिया है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐसे फितनों से बचो जो सिर्फ जालिमों को गिरफ्तार नहीं करता है बल्कि तमाम लोगों को अपने चपेट में ले लेता है। तो लफ्ज़ फितना जब किताब सुन्नत के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो उससे तीन तरह के अमूमन फितने मुराद होते हैं। एक फितना है जो दीन से मुताल्लिक है, एक फितना है जो मासियात और गुनाहों से मुताल्लिक होता है। दीन से मुताल्लिक फितने को आप शुबहात के फितने कह सकते हैं, गुनाहों से मुताल्लिक फितने को आप शहवत के फितने कह सकते हैं, और तीसरा फितना है आफात और मुसीबत का फितना। अगर मोबाइल के तनाजुर में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के तनाजुर में हम इस लफ्ज को देखें तो पाएंगे कि इन तीनों फितनों का गहरा ताल्लुक है इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ। तीनों फितने हद दर्जा हाई क्वालिटी के साथ इस इंटरनेट के साथ और सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक एक करके बयान करते हैं। आफात और मुसीबत का फितना, ये मोबाइल और इंटरनेट जहां बेशुमार फायदे हमें देता है, इसके बगैर हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आज एक घर भी आप नहीं दिखा सकते जिस घर में ये मोबाइल और इंटरनेट मौजूद ना हो। बल्कि घर तो छोड़ दें, शायद कोई आज के जमाने में नौजवान ऐसा नहीं है, या नौजवान भी छोड़ दे, कोई बच्चा और बूढ़ा भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये मोबाइल मौजूद ना हो। हर एक के पास ये इंटरनेट वाला मोबाइल आज मौजूद है। तो ये लोगों की जरूरत बन चुका है, इसके बगैर लोगों का जीना दुभर हो चुका है। दूसरे जो नेमतें हैं, एक इंसान भूखा प्यासा रह लेगा लेकिन मोबाइल के बगैर नहीं रह पाएगा, ऐसा महसूस होता है। अगर एक दिन बिजली ना आए तो दूसरी मुसीबतों को सह लेगा, लेकिन मोबाइल की चार्जिंग नहीं होगी, इस वजह से परेशान हो जाएगा। इंटरनेट नहीं चलेगा, वाईफाई नहीं चलेगा, इस वजह से परेशान हो जाएगा। तो आज हमारी जिंदगी के साथ मोबाइल का और इंटरनेट का इस तरह ताल्लुक हो चुका है। ये जहां हमारी दुनियावी बुनियादी जरूरियात में दाखिल हो चुका है, वहीं आफात और मुसीबतों को भी अपने साथ लाया है। आप देखें कितने ऐसे नौजवान आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं इसी इंटरनेट की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से। कौन सी चीजें शेयर करनी है, कौन सी चीजें लाइक करनी है, कहां क्या कमेंट करना है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को फॉरवर्ड करना है, अक्सर व बेशतर नौजवान इसके अंजाम से गाफिल होते हैं। जहां भी वो रह रहा है वहां के कुछ कानून होते हैं, मुल्की पैमाने पर, इलाकाई पैमाने पर, आलमी पैमाने पर उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से वो अपने खिलाफ मुसीबतों को मोल लेता है। कवानीन की पासदारी ना करने की वजह से खुफिया एजेंसियों की, इंटेलिजेंस की उस पर नजर रहती है। वो ये सोच रहा है कि मैं तो अपने रूम के अंदर हूं, अकेला हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा। हालांकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मख्फी तौर पर अकेले अंजाम दे सकें। ये जितनी कंपनियां हैं जो ये इंटरनेट वगैरह की सर्विस देती हैं, हमेशा एक बंदा उसके राडार पर होता है। आप देखें अक्सर व बेशतर ये सोशल मीडिया के जो एप्स होते हैं वो फ्री होते हैं। चाहे आप फेसबुक इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करें, स्नैपचैट इस्तेमाल करें, ट्विटर या एक्स इस्तेमाल करें, या कोई भी इस्तेमाल करें, अक्सर व बेशतर ये सब क्या होते हैं, फ्री होते हैं। बीबीसी हिंदी के अंदर एक न्यूज पढ़ा था, एक बहुत ही प्यारा जुमला उसने लिखा था कि अगर
मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन आप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आप खुश ना हो, ये ना समझे कि इस खिदमत को मैं फ्री में इस्तेमाल कर लिया, मुझे पैसा नहीं लगा। जो भी एप्लीकेशन एक यूजर फ्री में इस्तेमाल करता है, हकीकत में वो कंपनी उस शख्स को इस्तेमाल कर रही है। फ्री में कोई चीज कोई शख्स किसी दूसरे को नहीं देता। आप देख लें, दुनिया में किसी के पास आप 1 रुपया मांगने के लिए जाएं, वो नहीं देंगे। लेकिन ये तमाम चीजें फ्री के अंदर आपको मुहैया हो रही हैं। क्या हकीकत में ये फ्री ही है? यकीनन ये फ्री नहीं है। ये तमाम चीजें वो आपको इस्तेमाल कर रही है, आपकी जात को, आपके जहन को, आपकी शख्सियत को। गैर शऊरी तौर पर आप उन कंपनियों की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। किस तरीके से? एक एक चीज, एक एक कदम उन कंपनियों के ज़ेरे निगरानी है। आप कहां पर मौजूद हैं, लोकेशन बहुत सारे ऐप्स के अंदर जब तक आप ऑन ना करें वो काम नहीं करता। वो आप कहां पर हैं उसे खबर है, क्या कर रहे हैं खबर है, किस चीज से आपको दिलचस्पी है खबर है। एक एक चीज के बारे में एक कंपनियां आपके बारे में जानती हैं। तो वो आपके इन तमाम रोजमर्रा की जिंदगी के अहवाल को नोट कर रही है। अगर कोई शख्स आपके पीछे पड़ जाए, आपको एहसास हो जाए कि आपके पीछे कोई जासूस है, आप कब घर से निकलते हैं, कहां जाते हैं, दोपहर के वक्त कहां रहते हैं, असर के वक्त कहां रहते हैं, मगरिब के वक्त कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, किन चीजों को पसंद करते हैं, किन चीजों को नापसंद करते हैं। अगर आपको एहसास हो जाए कि कोई जासूस आपके पीछे पड़ा हुआ है जो इन तमाम चीजों को नोट कर रहा है, आपका क्या नजरिया होगा? आप लापरवाह होकर उस जासूस को छोड़ देंगे? दुनिया का कोई बंदा ऐसा मिलेगा आपको कि अगर उसको पता चल जाए कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये तमाम ऐप्स रोजाना उसकी जासूसी कर रहे हैं, उसे कोई खबर ही नहीं है, वो लापरवाह है। वो सोच रहा है कि मैं तो अकेला हूं, लेकिन हकीकत में ये तमाम उसके जासूस हैं जो उसके पल पल की खबर रख रहा है। अगर दुनिया के ये लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही थोड़ा सा इल्म दिया है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है। इस थोड़े से इल्म की बिना पर अगर आपके एक एक पल की खबर रख सकते हो, तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है, हम तमाम का खालिक है, क्या वो हमारे एक एक कदम के बारे में जानकारी नहीं रखता? शुरू में हमने क्या कहा था? हमारा अकीदा है कि हमें एक दिन मरना है और मरने के बाद अपने रब के सामने हाजिर होना है। एक एक कदम का, एक एक अमल का, एक एक जर्रे का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें हिसाब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़े होंगे और एक एक चीज हमारे सामने वो फ्लैश हो जाएगी, उस वक्त अंदाजा करें कि हम अपने नामा या अमाल के अंदर किन चीजों को देखना पसंद करेंगे, किन चीजों को देखना पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इन क्या कहते हैं ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए हद दर्जा लापरवाह हो जाते हैं। यहां तक कि ऐसे वेबसाइट्स के अंदर दाखिल होते हैं जो मुल्की कानून के तहत जुर्म के दायरे में आता है, और फिर ऐसे लोगों को लाइक करने की वजह से या ऐसे वेबसाइट के अंदर दाखिल होने की वजह से जो मुल्की कानून के तहत इंतहाई संगीन जराइम के अंदर दाखिल होता है, फिर वो पुलिस के, अदालत के, इंटेलिजेंस के चक्कर में पिसते रहते हैं और बेशुमार लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कितने बच्चे वालिदैन उनसे गाफिल रहते हैं। वो समझ रहा है कि शायद बच्चा कोई खेल खेल रहा है, गेम खेल रहा है, यूट्यूब ही तो देख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल कर ले तो क्या हर्ज हो गया। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते। उन्हें पता नहीं है कि मेरा बेटा जिसकी उम्र अभी 10 साल 15 साल या 20 साल की हो रही है, जो कि जिस वक्त खून गर्म रहता है और जहन कच्चा होता है, जिसे हुदसाउल अस्नान कहा गया हदीस के अंदर, जहन पुख्ता नहीं होता, अपने सही और गलत की तमीज नहीं कर पाता, जज्बाती होता है और जज्बात के बहाव में आकर पता नहीं किस दहशतगर्द तंजीम के साथ जुड़ गया, कहां किस चीज को कबूल कर लिया,
کسی نے اسے سبز باغ دکھایا اور اس کے ذہن کو واش کر کے اسے اس طرح کی غلط تنظیموں کے اندر گرفتار کر لیا. اس طریقے سے ایک باپ کے سامنے اس کا لختے جگر پھنس جاتا ہے, زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور کتنے ایسے نوجوان آج کل اسی جرم کی وجہ سے, سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کرنے کی وجہ سے, کچھ لکھنے کی وجہ سے آج جیل کے سلاخوں کے اندر ہے. تو فتنے کی جو پہلی قسم ہے آفات اور مصیبت کا فتنہ, تو یہ موبائل جہاں بے شمار فوائد ہمارے ساتھ لایا ہے, وہیں بے شمار مصیبتوں کو بھی ساتھ لایا ہے. اس لیے ایک بندے کو بہت ہی چوکنا ہو کر, ہوشیار ہو کر, بیدار ہو کر, آنکھیں کھلی رکھ کے ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دوسرا فتنہ ہے شہوت کا فتنہ, شیطان کا فتنہ. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. آپ کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا, اگر یہ خون دوڑنا بند کر دے آپ کی وفات ہو جائے گی, آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اگر کسی کے جسم میں خون کا حرکت کرنا بند ہو جائے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. جس طریقے سے آپ کے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے آپ کے رگوں میں, شیطان بھی اسی طرح آپ کے خون کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, کہ جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے, شیطان بھی اسی طرح اس انسان کے ساتھ موجود ہے, اس کے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. اور شیطان کبھی کسی کو جنت سے قریب نہیں کرتا, جہنم سے دور نہیں کرتا. جب شیطان کو اللہ رب العالمین نے سزا دی, ابلیس کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب سزا ملی, جنت سے باہر نکالا گیا, تو کیا کہا تھا شیطان نے, ابلیس نے کیا کہا تھا کہ جس بنی آدم کی وجہ سے آج مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے, میں اس بنی آدم کو اس جنت سے ہمیشہ حتی الامکان روکنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے اس کی قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے. اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. یہ تفصیل اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا, یہ پوری تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, وہ عدو مبین ہے, وہ کھلا ہوا دشمن ہے. کبھی بھی شیطان کسی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا, گرچہ خیر خواہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے, جیسے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے خیر خواہ بن کر آیا تھا, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے, وہ کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ایک انسان, ایک شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کس طریقے سے ایک انسان کو جہنم کے راستے پر ڈال دے, جنت سے دور کر دے. ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ شیطان, ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس ویب سائٹ کے اندر داخل ہو جاؤ, اس ویڈیو کو دیکھ لو, ابھی تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اس طریقے سے اسے بھلاتا ہے, تھپکیا دیتا ہے, غافل کر دیتا ہے, اور ایک انسان ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے جسے عام حالات میں انجام نہیں دے سکتا تھا. جب یہ چیز موجود نہیں تھی تو جو قوم کے شریف لوگ ہوتے تھے, متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ جو مسجدوں کے اندر حاضری دیتے تھے, وہ اس طرح کی برائیوں سے محفوظ تھے. پارکوں کے اندر جو برائیاں ہوتی تھی پہلے, آج اپنے والدین کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں ان برائیوں کا انجام دیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. والدین کو خبر نہیں ہے کہ بچے کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کن سے چیٹنگ کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہے. اب چلے جائیں کسی بھی پروگرام میں, آپ دیکھیں گے 10 لوگ ایک زمانے کے بعد مل رہے ہیں, سال 2 سال کے بعد, عید کے موقع پر ملے ہیں, 2-4 منٹ آپس میں گفتگو کی, اس کے بعد سب کوئی اپنے اپنے موبائل کے ساتھ مشغول ہو گیا. کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں, نہ باپ کو بیٹے سے خبر ہے, نہ بیٹے کو والدین کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ شوہر کے ساتھ بیوی کا کوئی رشتہ ہے,
हर कोई अपने अपने मोबाइल के अंदर डूबा हुआ है, दूसरे को क्या कुछ हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह का एक किस्सा आता है, किसी ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ हमारी मजलिसों में उठते बैठते नहीं हैं, अक्सर व बेशतर अकेले अपने घर के अंदर आप मुक़य्यद रहते हैं, महबूस रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, आपको तन्हाई का एहसास नहीं होता, आपको खराब नहीं लगता, ये तन्हाई आपको काटती नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तन्हा बिल्कुल नहीं होता हूं। तो लोगों ने कहा किनके साथ होते हैं आप? कहते मैं अल्लाह के रसूल के साथ होता हूं, सहाबा इकराम के साथ होता हूं, मुहद्दिसीन इकराम के साथ होता हूं। लोगों को ताज्जुब हुआ, इस जमाने में अल्लाह के रसूल कहां इनको मिल गए, सहाबा इकराम कहां मिल गए? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो किताबें हैं उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, मैं अपना पूरा वक्त उन किताबों के अंदर गुजारता हूं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस होती है, सहाबा इकराम के अहवाल होते हैं, ताबईन के अहवाल होते हैं, मैं उनके अंदर डूबा हुआ रहता हूं, वही मेरे दोस्त हैं। लोगों को ताज्जुब होता था पुराने जमाने में कि कोई शख्स कैसे इन किताबों के अंदर डूबा हुआ हो सकता है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, जब अपने तलबा को मैं नुज़हतुन नज़र पढ़ाते हुए मुहद्दिसीन के अहवाल बयान किया और किस तरीके से मुहद्दिसीन ने इल्म हदीस की खिदमत की है और हजारों लाखों रावियों के हालात को उन्होंने कलमबंद कर दिया है और ज़ख़ीम किताबें उन्होंने इस बाब के अंदर लिख डाली हैं। जैसे कि हाफिज मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, रिजाल के ऊपर किताब लिखी, कितनी जिल्दों में? 35 जिल्दों में। इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने तारीख़ दमश्क लिखी, कितनी जिल्दों में? 70 से ज़ायद जिल्दों में। तलबा कहने लगे कि क्या यह मुमकिन है कि कोई शख्स इतने हजारों रावियों के बारे में जानता हो, उनके नाम के बारे में, उनके असातिज़ा के बारे में, शागिर्दों के बारे में, कब वफात हुई, किन के पास गए, किस शहर में गए, कब गए, क्या इल्म हासिल किया? क्या यह मुमकिन है? कैसे कोई शख्स इतनी चीजें याद रख सकता है? तो मैंने कहा यह उसी तरह मुमकिन है जैसे आपको क्रिकेटर्स के स्कोर याद रहते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में खेलता है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये अफ्रीका का है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये श्रीलंका का है। कभी आप लोगों से गलती होती है? आपने कभी किसी श्रीलंका के खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कह दिया? ऐसा होता है आपके साथ? कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, किसके कितने स्कोर है, कितनी सेंचुरियां हैं, कितने विकेट लिए हैं। अगर आपके जहन में ये फालतू चीजें जो बगैर आपने कभी मेहनत नहीं की इन चीजों को याद करने में, पढ़ने में, आपके जहन में हजारों चीजें, अगर हजारों नाम याद रह सकते हैं, तो ये मुहद्दिसीन इन चीजों को दीन समझकर क्या करते थे? अपने असातिज़ा के सामने बैठते थे और अपनी उम्रें उन्होंने लगा दी इन चीजों की खिदमत में। तो क्या उनके लिए मुश्किल है? तो उन्हें फौरन मिसाल समझ में आ गई, कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज देखें, पुराने जमाने में आप पाएंगे जो तलबे इल्म होते थे वो इन चीजों के अंदर हद दर्जा मशगूल रहते थे। तलबा को आप पाएंगे जो हकीकी तलबा होते हैं वो कभी भी किताबों से दूर नहीं होते, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी के अय्याम में ज्यादा मशगूल रहते ही है। वो चाहे सफर के दौरान हो, चाहे हदर में हो, चाहे रूम के अंदर बैठे हो, अपनी किताबों में मशगूल होते हैं। यही एक तालिब की निशानी है कि वो किताबों के अंदर इल्म के साथ जुड़ा हुआ रहे। लेकिन आज वही हालत आप पाएंगे हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया के साथ, इंटरनेट और मोबाइल के साथ। मस्जिद में आए तब भी मोबाइल के साथ, नमाज से जैसे ही फारिग हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम फिरते फौरन मोबाइल निकाला, जैसे कि उसमें मैसेज आया हो तुम्हारी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। बगैर मोबाइल के 1 मिनट नहीं रह सकते। दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे मोबाइल के अंदर गुजर जाते हैं, पूरी पूरी रात गुजर जाती है मोबाइल लिए हुए। उसके जो जिस्मानी तौर पर असर पड़ते हैं वो तो है ही, लेकिन दीनी नाहिए से, उखरवी नाहिए से जो उसकी जिंदगी तबाह हो रही है उसका एक शख्स अंदाजा नहीं लगा सकता। ये तमाम चीजें नोट हो रही हैं। पुराने जमाने में या आज भी बहुत सारे वो लोग जो मुआशरे के अंदर शरीफ समझे जाते हैं, जिन कामों को अंजाम नहीं दे सकते, इस मोबाइल ने उन तमाम गुनाहों को उनके लिए आसान कर दिया है। उनके दिल के अंदर, उनके जेबों के अंदर आके दाखिल हो गया है। यहां तक कि
घरों के अंदर आज तिलावत नहीं होती। घरों के अंदर आप चले जाएं, पता चलेगा कि सालों साल गुजर चुके हैं। आखिरी रमजान में कुरान करीम को उठाया गया था, उसके बाद कभी तौफीक नहीं हुई घर के किसी फर्द को कि कभी कुरान उठा ले और उसकी तिलावत करें। मुसहफ उठाएं, पता चलेगा कि रमजान को अगर 10 महीने गुजर चुके हैं तो मुसहफ के ऊपर, कुरान के ऊपर एक गर्द जमा हो चुका है। लेकिन मोबाइल को देखें, दिन के अंदर 10 मरतबा उसकी सफाई होती है। कभी किसी को देखा है कि उसका मोबाइल इतना गंदा है कि उस वजह से उसको सही से देखना ही आ रहा? मोबाइल इंतहाई साफ सुथरा, अगर उसमें कुछ धब्बा भी लग जाए, स्क्रीन पर कुछ हो जाए तो फिर कबूल नहीं है, उसी दिन फौरन जाके उसको चेंज करना है। लेकिन उसी शख्स के घर की हालत आप जाके देख लें, मुसहफ जाके उठा के देखें, पता चलेगा कि आखिरी रमजान में उठाया था, वो भी लैलतुल कद्र में। फिर इंतजार कर रहा है मुसहफ कब लैलतुल कद्र आए ताकि घर का ये बंदा तौफीक हो तो उसे उठा ले। ये हालत है। तो हकीकत में इसे फितना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? तो ये फितने की जो दूसरी किस्म है, शहवत का फितना, उसके अंदर अच्छी तरीके से इसे गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी किस्म फितने की शुबहात के फितने। शुबहात के फितने से मुराद क्या है? फितनों की तीसरी किस्म है शुबहात के फितने। ऐसे फितने जिनका ताल्लुक इंसान के दीन के साथ है। पहला फितना हमने क्या कहा? आफत और मुसीबत का फितना। दूसरा गुनाहों का फितना। और तीसरा फितना है दीन के साथ जुड़ा हुआ फितना, जो एक इंसान के दीन को बिगाड़ कर रख दे, तहस नहस कर दे। जुमा के खुतबे में हमने बयान किया था कि एक इंसान के पास अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो कौन सी नेमत है? वो है तौहीद की नेमत, वो है दीन की नेमत, ईमान की नेमत। अगर दुनिया की तमाम नेमतें हमसे जायल हो जाए, फौत हो जाए, और तौहीद की नेमत हमारे पास मौजूद हो, दीन की नेमत मौजूद हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर यही दीन हमारे पास बिगड़ी हुई शक्ल में हो, ओरिजिनल और असल दीन हमारे पास मौजूद ना हो, वो दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया था और लोगों के दरमियान दावत और तबलीग का हुक्म दिया था, जिस दीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? इन्नद्दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मकबूल दीन फकत क्या है? दीन इस्लाम है। कौन सा दीन इस्लाम? जो दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था और जिसकी जिंदगी भर अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को दावत और तबलीग की। जिस दीन पर सहाबा इकराम कायम थे, उस दीन के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं था। वो दीन बिल्कुल असल और ओरिजिनल शक्ल में मौजूद था। उसी दीन की हमें इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। बाद में आने वाले तमाम लोग क़यामत तक अगर सहाबा इकराम वाले दीन पर कायम रहें तो नजात पा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई दूसरा दीन रहे तो फिर ये क्या हो जाएंगे? तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर किसी के पास कोई ऐसा दीन हो जो सहाबा इकराम के दीन से मैच नहीं करता, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये मिलावट वाला दीन काबिल कबूल होगा? जी फरमाए, काबिल कबूल होगा? आपके पास एटीएम है ना, अपना ही अकाउंट है, अपना ही पैसा है, आपका ही कार्ड है, किसी दूसरे का नहीं। आप जाके एटीएम में डालें और पासवर्ड गलत हो, मैच ना करे, जो आपने बैंक में रजिस्टर कराया है पासवर्ड अपना, वो पासवर्ड ना डालें और दूसरा पासवर्ड डालकर पैसा निकालना चाहे, आपका ही पैसा है, आपका ही कार्ड है, आपका ही अकाउंट है, क्या पैसा निकल जाएगा? पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि पासवर्ड क्या हो रहा है? यहां मैच नहीं कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, जिस दीन की जिंदगी भर अल्लाह के रसूल ने दावत और तबलीग की, सहाबा इकराम के पास जो दीन था, यही दीन अगर हमारे पास हो तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल है।
لیکن کوئی دوسرا دن اللہ کے سامنے ہم پیش کریں. ہمیں ایک دن مرنا ہے, قبر کے اندر جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ ہر ایک کو قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے. جیسے ہی قبر میں داخل ہوں گے فرشتے آئیں گے, پوچھیں گے من ربک. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وما دینک, تمہارا دین کیا تھا؟ جس دین پر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے. 40 سال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا, 50 سال, کسی کو 60 سال, کسی کو 70 سال, کسی کو 90 سال. اپنی زندگی میں جس دین کو اس نے فالو کیا ہے وہی دین وہ قبر کے اندر پیش کرے گا. مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اپنی زندگی میں جس دین کو اس نے فالو کیا ہے, جب فرشتے پوچھیں گے وما دینک, تمہارا دین کیا تھا, اسی دین کو پیش کرے گا جس دین کو اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر فالو کیا ہے. میچ کیا جائے گا اس دین کے ساتھ جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. اگر میچ کر گیا انتہائی سعادت مند, فوراً اللہ رب العالمین کے پاس یہ دین قابل قبول ہو جائے گا. لیکن اگر میچ نہ کرے, ایسا دین اس نے فالو کیا ہے صحابہ اکرام جانتے بھی نہیں تھے, اس کے پاس جو دین ہے اس کے اندر بے شمار بدعتیں موجود ہیں. اس دین کو اس نے بگڑی ہوئی شکل میں پیش کیا. اصل دین کے ساتھ 10%, 15%, 20%, 30%, 40% مطابقت ہو رہی ہے اور 50% اس کے پاس بدعتیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ دین نازل نہیں کیا تھا, تو کیا یہ دین اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہو جائے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے, دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین انسان پیش کرے اللہ رب العالمین کے سامنے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں وہ کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پتا چلا کہ یہ دین کی جو نعمت ہے وہ انتہائی اہم نعمت ہے, اسی پر جنت و جہنم موقوف ہے. اس لیے اس نعمت کی ہمیں حد درجہ حفاظت کرنی چاہیے. اس نعمت پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ سوشل میڈیا کے اندر بے شمار ڈاکو موجود ہیں, اور ہمارے یہ نوجوان ان ڈاکوؤں کے نرغے میں ہیں جو ان کے دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ پائیں گے آج کے نوجوان کو کہ وہ دین کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے. اس کے دین سیکھنے کا سورس کیا ہے؟ اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آج اگر مسجد کے اندر مغرب سے عشاء تک درس رکھا گیا ہے تو آ جائے, لیکن موبائل کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر روزانہ 8 سے 10 گھنٹہ وہ دے سکتا ہے. اگر اسے کہا جائے کہ دن بھر درس ہوگا, بیٹھنا ممکن نہیں ہے, بے شمار کام ہے ہمارے پاس, لیکن روزانہ وہ 7-8 گھنٹے دے رہا ہے سوشل میڈیا کو. اسے ذرہ برابر کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا اتنا اہم وقت چلا گیا اس سوشل میڈیا کے پیچھے. لیکن علمی دروس کے اندر 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج کا نوجوان اکثر و بیشتر دین کی معلومات کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اپنے مسجد کے امام سے, علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر, بہت کم. اسے توفیق نہیں ہوتی اس چیز کی. ہاتھ میں موبائل ہے, انٹرنیٹ کا نیٹ پیک ڈالا ہوا ہے, جس مسئلے کی ضرورت پڑی سب سے بڑا مفتی اسی موبائل کے اندر مفتی گوگل موجود ہے. مفتی گوگل سے جا کے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کا جواب کیا ہوگا؟ فوراً بے شمار جواب آ گئے. انہی میں سے کوئی جواب اسے پسند آ گیا, اس پر عمل کر لیا. آپ بتائیں کہ وہاں پر جو اسے جواب دیا گیا ہے, کیا اس مفتی کو پہچانتا تھا جس کا جواب وہ دین سمجھ کر قبول کر رہا؟ یہ اس کے دین کا حصہ بن رہا, اسے وہ دین سمجھ کر عمل کر رہا, اور اسے پتا بھی نہیں ہے کہ جس نے مجھے جواب دیا اس کا عقیدہ کیسا تھا, اس کا منہج کیسا ہے, وہ حقیقت میں اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے. اگر اس چیز کی اس کے پاس تمیز نہیں ہے کہ جس سے ہم دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں, اسی سوشل میڈیا کو علماء کے دروس, جو معروف سلفی علماء ہیں ان کے دروس الحمدللہ بھرے پڑے ہیں. یوٹیوب کے اندر
हजारों घंटे के आपको दुरुस्त मिल जाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये दुरुस्त खत्म नहीं होंगे। शेख अबू सैद जमीर को आप सुनना शुरू करें, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी या उनके दुरुस्त शायद खत्म ना हो। रोजाना 1-2 घंटा निकाल लें कि शेख अबू सैद जमीर हफिज़हुल्लाह के दुरुस्त सुनने, बेहतरीन दीनी मालूमात आपके पास जमा हो जाएंगी खालिस किताब सुन्नत की रोशनी में। शेख इनायतुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह, शेख अबू रिजवान मोहम्मदी, इस तरह बेशुमार उलमा इकराम है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिनके दुरूस भरे पड़े हैं यूट्यूब के अंदर। लेकिन एक शख्स को पता होना चाहिए कि किन के दुरूस हमें सुनने चाहिए, किन के दुरूस से हमें परहेज करना चाहिए। जो लोग सही अकीदा और मनहज के नहीं है, या जो उलमा में से नहीं है, जिन्होंने किताब सुन्नत का मारूफ तरीके से इल्म हासिल नहीं किया है, ऐसे बेशुमार लोग सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं, व्हाट्सएप के अंदर हैं, फेसबुक के अंदर है, उनके खास पेजेस मौजूद हैं, यूट्यूब के अंदर उनके दुरूस भरे पड़े हैं, जो हकीकत में आलिम दीन नहीं है, जिनको हम क्या कहते हैं आज की इस्तिलाह में बरदर्स कहते हैं। ये बरदर्स कोई आज की पैदावार नहीं है, ताबईन तबे ताबईन के जमाने से इनका वजूद है। अब सही मुस्लिम का मुकद्दमा पढ़ें, गुज़श्ता 2 हफ्ता पहले सही मुस्लिम के मुकद्दमे की रोशनी में मनहज सलफ क्या है, इसका एक दर्स मैंने अपने जामिया में, जामिया इस्लामिया नूरबाग कौसा मुमरा, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, तो सही मुस्लिम के मुकद्दमे की रोशनी में मनहज सलफ क्या है, इस मौजू पर एक दर्स है और वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मौजूद है। इस दर्स को सुने। और सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ताबईन तबे ताबईन और सहाबा इकराम से जो मनहज नकल किया है कि किन से हम दीन को सीखें, जरा उन नसूस को आप देखें। उसी जमाने से ऐसे लोग मौजूद थे और मामूली तादाद में नहीं, बेशुमार तादाद में। अबू ज़नाद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो तबे ताबईन में से हैं, कि अदरक्तु बिल मदीनति मिअतन कुल्लुहुम मअमून ला युखज़ु अन्हुमुल इल्म युक़ालु लैसा मिन अहली। मदीने के अंदर, ये किसी दूसरे शहर की बात नहीं है, जो मदीना उस वक्त मरकजुल इल्म था, इल्म और इरफान का मरकज था, तमाम के तमाम किबार मुहद्दिसीन मदीने के अंदर मौजूद थे। उस जमाने की बात है, खुद मदीने के अंदर 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद थे जो लोगों को दीन सिखाना चाहते थे, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाना चाहते थे। लेकिन मा युखज़ु अन्हुमुल इल्म, ऐसे लोगों से इल्म नहीं लिया जाता था, लोग इनसे दूर भागते थे। क्यों? युक़ालु लैसा मिन अहलिही, कहा जाता कि ये उलमा में से नहीं है, ये अहले इल्म में से नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अल-किफ़ाया के अंदर नकल किया है, अब्दुल्लाह बिन वहाब रहमहुल्लाह जो इमाम मालिक के शागिर्द हैं, पूछते हैं कि दूसरे लोग जो होते थे उनसे इल्म लिया जाता था, उनसे उम्र में भी छोटे होते थे, फिर भी उनसे इल्म लिया जाता था, लेकिन इनसे लोग भागते क्यों थे? तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने क्या जवाब दिया? क्योंकि इन लोगों ने किताबों से इस इल्म को रट लिया था, असातिज़ा के सामने बैठकर इस इल्म को हासिल नहीं किया था। तो ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में अगर कोई शख्स किताब पढ़कर जाती मुताले से आलिम बनने की कोशिश करता और लोगों को आके दीन सिखाता, तो उस जमाने के लोग हद दर्जा मुहतात थे अपने दीन को लेकर। वो जानते थे कि ये दीन जो है ये इंतहाई अहम और संगीन मसला है, किसी से भी हम इस दीन को हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों से भागते थे। इसी तरीके से हमें दीन लेने में ये अहम चीज देखनी है कि जिससे हम दीन कबूल कर रहे हैं। हमने एक उन्वान लिखा यूट्यूब पर जाकर कि इस मौजू पर हमें कोई तकरीर चाहिए, कोई दर्स चाहिए, और वहां पर एक बंदा जाहिर हुआ जो क्या है, जो शिया फिक्र का है, खवारिज के फिक्र का है, मुअतज़िला के फिक्र का है, जहमिया के फिक्र का है, जो गुमराह फिरके हैं उनके अफकार से मुतअस्सिर या उन्हीं के अफकार की दावत और तबलीग करने वाला। और हमने सुनना शुरू किया, हमारे अंदर तमीज ही नहीं कि ये हकीकी दीन पेश कर रहा है, वही दीन जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया था, या उस दीन के अंदर बहुत सारी चीजें वो अपनी तरफ से मिलावट कर रहा है, मिलावट वाला दीन हमें पेश कर रहा है, बिगड़ी हुई शक्ल में, असल और ओरिजिनल शक्ल में नहीं। और हमने उसे अपना दीन बना लिया। जब हमने अपना दीन बना लिया है, कब्र के अंदर पेश करेंगे इस बिगड़े हुए दीन को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये बिगड़ा हुआ दीन काबिल कबूल नहीं होगा।
आज कितने ऐसे दुआत मौजूद हैं, डॉक्टर असरार अहमद को सुनने वाले कितने लोग मौजूद हैं, बेशुमार लोग। हालांकि किस फिक्र के थे? जो खवारिज का फिक्र था उसी फिक्र की उसने जिंदगी भर दावत व तबलीग की। मौलाना मौदूदी से मुतासिर और उन्हीं के फिक्र की तर्जुमानी करने वाले कितने दुआत मौजूद हैं इस यूट्यूब के अंदर, और लोग उन्हीं को सुनते हैं। और जमात इस्लामी के फिक्र को, जो हर तरह की बिदातों को अपने अंदर समो लिया है, जो पुराने जमाने में गुमराह, बड़े बड़े गुमराह फिरके मौजूद थे, उनके अंदर जो बड़ी बड़ी बिदातें थी, जैसे खवारिज का जो एक फिरका है, उसके अंदर सबसे बड़ी बिदात क्या थी? सबसे बड़ी बुराई क्या थी? सबसे बड़ी बुराई यह थी कि हुक्काम के खिलाफ, ये सहाबा इकराम ताबईन के मनहज पर नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्कामुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से जो हिदायत दी है, इसको पशे पुश डालने वाले और अपने अक्ल व क़ियास से इन हुक्काम की तकफीर करने वाले और इनके खिलाफ बगावत करने वाले, ये बिदात जो इस जमात के अंदर सबसे बड़ी बिदात थी, जमात इस्लामी ने इस बिदात को वहां से अखज़ किया। शियों के यहां सबसे बड़ी बिदात क्या है? सहाबा इकराम पर तानो तशरी करना, बुरा भला कहना, ये बिदात शियों से लिया। मुअतज़िला के यहां हदीस रसूल का इनकार, अक्ल व क़ियास को सब पर मुकद्दम करना, अक़लानियत को मुअतज़िला से लिया। जहमिया के यहां सबसे बड़ी बिदात क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात का इनकार करना, और जो दूसरी तमाम गुमराह जमातें हैं उनके अंदर उमूमी सिफत यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात के अंदर तावील करते हैं। ये तमाम बिदातें इन तमाम जमातों से जमात इस्लामी ने कबूल किया है। इस तरीके से जो मुख्तलिफ बड़े बड़े गुमराह फिरके थे, उनके अंदर जो सबसे बड़ी बिदातें थी, जमात इस्लामी ने अपने अंदर उसको क्या कर लिया है? जमा कर लिया है। इस तरीके से ये जमात तैयार हुई है। तो आप गौर करें कि अगर कोई शख्स इस जमात के अंदर जाकर अपनी खिदमत अंजाम देना चाहे, तो क्या हकीकत में इस्लाम की वो खिदमत करेगा? इस जमात के फिक्र को लोगों के सामने पेश करे, तो क्या वो दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया था, वो दीन वो सिखाएगा? अगर ऐसे शख्स से अगर कोई शख्स यूट्यूब पर जाकर दीन सीखे, तो उसके दीन की हालत क्या होगी? तो ये दीन का फितना है, ये शुबहात के फितने हैं। एक शख्स इस सोशल मीडिया के जरिए से अगर चौकन्ना ना हो कि किन के दुरुस्त सुनने हैं और किन से दूर भागना है, तो हकीकत में पता यह चलेगा कि चंद महीनों के बाद ऐसे अफकार से मुतासिर हो चुका है जो सरासर गुमराही हैं। सोशल मीडिया की, नौजवानों की गुमराही में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा किरदार आज के जमाने में यही है कि हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया ने क्या किया है? गुमराह जमातों के साथ जोड़ दिया है, गुमराह अफकार के साथ जोड़ दिया है। हमारे ये नौजवान हर तरह के लोगों से दीन हासिल कर रहे हैं, हर तरह के लोगों को सुन रहे हैं, और इस वजह से उनके पास खालिस दीन नहीं है, खालिस मालूमात उनके पास नहीं होती। हर शख्स को जो भी बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर सके, टिप टॉप अंदाज हो, तो उसको क्या करते हैं? समझते हैं कि जो भी शख्स मेंबर पर आकर खड़ा हो वो आलिम ही होता है। मेरे भाइयों, हर शख्स जो मेंबर पर खड़ा हो आलिम नहीं होता है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, जिनकी वफात आज से सैकड़ों साल पहले हुई है, 728 हिजरी में जिनकी वफात हुई है, फरमाते हैं शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कि दुनिया के अंदर सबसे अफजल कौन लोग हैं? सबसे अफजल अंबिया इकराम हैं, और उनके बाद सबसे अफजल कौन है? उन अंबिया इकराम के साथी जिनको सहाबी हम कहते हैं, ये सबसे अफजल है। इन्हीं के बरअक्स दुनिया के अंदर सबसे बुरे लोग कौन हैं? दुनिया के अंदर सबसे बुरे लोग वो हैं जो नबी ना होने के बावजूद नबूवत का दावा करें, झूठे नबी। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, झूठा नबी था, नबूवत का दावा किया था, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नबूवत मिली नहीं थी। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अफजल बंदे कौन लोग हैं? जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत से सरफराज किया था। इसी के बरअक्स, इसी के बिलमुकाबिल सबसे मबगूज बंदे, नापसंदीदा बंदे कौन हैं? जो नबूवत का झूठा दावा करे। और वहां पर अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल कौन लोग होंगे?
सहाबा इकराम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, जो अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया का वारिस कौन है? अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं जो लोगों को सही दीन सिखाते हैं। तो इसी के बिलमुकाबिल झूठे नबूवत का दावा करने वालों के बाद दुनिया के अंदर सबसे मबगूज किस्म के लोग कौन होंगे? जो हकीकत में आलिम ना हो लेकिन झूठे तौर पर इल्म का दावा करें, लोगों के सामने खड़े हों और अपने आप को आलिम बनाकर पेश करें, हालांकि उनकी हालत ऐसी है कि वो देखकर कुरान और हदीस को पढ़ भी नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर की बात है, दीन के मसाइल के बारे में जानना तो दूर की बात है, उनके अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं कि देखकर कुरान पढ़ लें, हदीसें पढ़ लें, और वो लोगों के सामने अपने आप को क्या पेश कर रहे हैं? आलिम बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो आलिम ना हो उसके बावजूद झूठे इल्म का दावा करे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे मबूज है। इसी तरीके से अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, ये दोनों आइमा फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों को दीन सिखाने जाएं, हालांकि उनके पास खुद किताब और सुन्नत का इल्म ना हो, तो ऐसे लोग गुनहगार हैं। और जो इनको मौका दें, इनको प्रमोट करें, तो ऐसे लोग भी गुनहगार हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज आपको इल्म हासिल करने के लिए पुराने जमाने में जिस तरह हजारों मील का सफर करना पड़ता था, इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने पैरों पर चलकर 20 साल की उम्र से पहले तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर किया है। मक्का से मदीना तकरीबन आज की तारीख में भी 500 किलोमीटर है। फरमाते हैं कि मक्का से मदीना कितनी बार मैंने पैदल चलकर सफर किया दीन सीखने के लिए, मुझे तादाद भी अब याद नहीं है। तो पुराने जमाने में उस्ताद के पास जाना पड़ता था हजारों मील सफर करके, लेकिन आज आप घर में बैठकर उस नेमत को हासिल करते हैं। आपने मोबाइल निकाला और किसी अच्छे आलिम दीन की कोई तकरीर सुनी, कोई दर्स सुना, ये नेमत घर में बैठकर आपको हासिल हो गई। तो इस नेमत की अगर कोई कदर करे, हकीकत में जो मारूफ सलफी उलमा है उनके दुरूस को लाजिम पकड़े, तो बेहतरीन आपका साथी भी हो सकता है, आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरीन तब्दीली ला सकता है। मैं बेशुमार मौकों पर इससे पहले कह चुका हूं कि आज अगर हम इम्तिहान लें अपने नौजवानों का कि सूरह फातिहा पढ़कर सुनाएं, तो हमें अफसोस होगा कि हमारे ये नौजवान सूरह फातिहा भी सही तरीके से नहीं पढ़ना जानते। पूरा कुरान तो छोड़ ही दे आप, अक्सर व बेशतर ऐसे लोग निकलेंगे जो पढ़ भी नहीं सकते देखकर भी, और ऊपर से तजवीद की गलतियां बेशुमार। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये असातिज़ा के सामने बैठकर कुरान को सीखते नहीं है। इस सोशल मीडिया का एक बेहतरीन इस्तेमाल आपको सिखा रहा हूं, और इस पर अमल करना आज से शुरू कर दे, करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना बहुत ज्यादा मैं वक्त आपसे तलब नहीं कर रहा हूं, बस 10 मिनट, 24 घंटे से मेरे से 10 मिनट देना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। दिन की शुरुआत करें फजर की नमाज के बाद बैठकर किसी अच्छे कारी की तिलावत आप शुरू करें। जैसे मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर जो अइम्मा हजरात हैं, शेख हुदैफी जैसे हैं, बेहतरीन कारी हैं, इब्राहिम अल अखदर बेहतरीन कारी हैं, अयमन सुवैद बेहतरीन कारी हैं सीखने के एतबार से। हालांकि दूसरों की आवाज इनसे बेहतर है, लेकिन अगर कोई तजवीद के साथ कुरान सीखना चाहे तो ये 3 नाम मैंने लिया, शेख अली अल हुदैफी, इब्राहिम अल अखदर और अयमन सुवैद। इनके बेशुमार क्लिप्स मौजूद हैं कुरान करीम के। आप सिर्फ 10 मिनट क्या करें, मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, उनमें आप 2 आयत 3 आयत एक सफा, ज्यादा से ज्यादा एक सफा तकरीबन 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में तरतील के साथ। 10 मिनट में तकरीबन आप 5 मरतबा पढ़ लेंगे। कम से कम इतना वक्त अगर दे सके, उससे ज्यादा दे सके तो और अफजल है। अगर आप चालू कर देते हैं कि उन आयतों को रिपीट करें, एक एक आयत को उनके साथ आप 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा रिपीट करें, जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़ना शुरू करें। आप आज आप अपनी तिलावत की रिकॉर्डिंग करें और फिर 1 महीने तक इसी तरह जारी रखें। 1 महीने के बाद दोबारा अपनी आवाज की, अपनी तिलावत की रिकॉर्डिंग करें और खुद देखें कि आपकी तिलावत में कितना फर्क आ चुका है। बेहतरीन कुर्रा की तरह आप तिलावत कर सकेंगे इंशाअल्लाह, अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें तो ये बहुत बड़ी नेमत भी है। बेशुमार तलबा इल्म
इसी के जरिए आज बेशुमार बड़ी बड़ी किताबों को सैकड़ों घंटे के दुरुस्त को सुन चुके हैं। जो लोग अरबी समझ सकते हैं, मुफहरसुल मुहादरात के नाम से एक एप्लीकेशन है इसमें एंड्रॉइड मोबाइल में, मुफहरसुल मुहादरात। जो लोग अरबी समझ सकते हैं वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और यहां पर किबार सल्फी उलमा के दुरुस्त मौजूद हैं, हजारों घंटे उन दुरुस्त को सुनना शुरू करें। तो इस तरीके से आप इस नियमत को अपने लिए हुज्जत बना सकते हैं, अपने खिलाफ नहीं। यह हकीकत में बहुत बड़ी नियमत है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसका सही इस्तेमाल करे। शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफिज़हुल्लाह से मदीने के अंदर पूछ रहा था कि कैसे आपने ये इल्म हासिल किया। तो शेख ने जो बताया अपनी पूरी जिंदगी कि कैसे वो इस मैदान में आए, उनका बैकग्राउंड क्या है। आप लोग जानते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। जब उन्होंने इस मैदान में कदम रखा दावत व तबलीग से पहले, उन्होंने पहले अपने आप को इल्मी तौर पर मजबूत किया। और जिस तरीके से एक तालिब इल्म को हकीकत में मारूफ तरीके से इल्म के रास्ते में बढ़ना चाहिए, वही तरीका शेख ने इख्तियार किया। जब अरबी जबान समझने लगे, अपने अंदर सलाहियत पैदा कर ली, तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह जैसे किबार आलिम दीन को, जो इस दुनिया के सबसे आखिरी सदी के अंदर बड़े उलमा में शुमार होते हैं, उनको उन्होंने नासिम पकड़ा और उनके दुरूस को सुनना शुरू किया। फरमाते हैं कि 400 घंटे से ज्यादा मैंने उनके दुरूस को सुना है, 400 घंटे से ज्यादा। तो देखें, शेख अलबानी दुनिया से गुजर चुके हैं, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, डायरेक्ट उनके दर्स में बैठने की हमें तौफीक नहीं मिली, हमें इस सआदत नहीं मिली। लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत के जरिए शेख अलबानी रहमहुल्लाह जैसे आलिम दीन के दुरूस से हम जुड़ सकते हैं और उनके इल्म से फायदा उठा सकते हैं। तो इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने आप को हलाक और बर्बाद भी कर सकते हैं। वहदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखा दिए हैं। इसलिए हर शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना निगहबान, मुराकिब और निगरां समझना चाहिए। और जब भी इस मोबाइल को हाथ में लें, हमेशा ये समझें कि किरामन कातिबीन हर चीज नोट कर रहे हैं। नामा अमाल के अंदर सब कुछ दर्ज हो रहा है और सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब हम पेश होंगे तो हमारे सामने पेश हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि इस नेमत का सही इस्तेमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैर। बाद इसके मैं सदारती खिताब के लिए फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल मजीद तैमी हाफिज़ुल्लाह साहब से मदू करता हूँ कि वह आएँ और सदारती खिताब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। सोशल मीडिया का फितना और नौजवानों की गुमराही, इस उन्वान से आप मुदल्लल तकरीर सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस ताल्लुक़ से मैंने एक आयत आपके सामने सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ से पढ़ी है, आयत नंबर 36। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, कि जो शख्स अल्लाह के याद से गाफिल रहता है, अल्लाह ताला नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक शैतान को मुकर्रर कर देता है। जो भी बंदे मोमिन है, मुस्लिम है, और अगर वो अल्लाह के याद से गाफिल हो करके जिंदगी गुजार रहा है, तो अल्लाह ताला नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन,
तो अल्लाह ताला उसके ऊपर मुस्तकिल एक शैतान को बैठा देता है। ये आयत पढ़ें आप, सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर 36। और वो शैतान क्या करता है? फहुव लहू करीन, उसका बेहतरीन दोस्त बन जाता है। तन्हाई के लिए भी, जमात के लिए भी, उजाले के लिए भी, अंधेरे के लिए भी। अब वो शैतानी अमल छोड़ करके रहमानी अमल नहीं कर पाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1450 साल पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस आयत का नुज़ुल किया है कि जो भी है, तन्हाई हो, जमात हो, शेख फारूक मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला जिन फितनों का जिक्र कर रहे थे, सबसे बड़ा फितना उसमें शहवात का फितना है। शैतान जो है 2 फितनों में इंसान को गिरफ्तार करता है और दोनों फितनों की वजह से इंसान को बर्बाद करता है। सबसे पहला फितना ये जो है शुबहात का फितना है, दीन के ताल्लुक से शुबहात पैदा करता है। और जब आदमी इस बंधन से निकल जाता है, जैसे यकीन है उसे कि नहीं आखिरत है, अजाब कब्र है, अल्लाह की जात है नहीं, मलाइका हैं, अल्लाह ने अंबिया रसूल को मबूस किया और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। जब इन